Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today's video topic is gas tanker versus bulk carrier. Those who have been following my accounts from last few years, they know that I have sailed on bulk carrier. My last two vessels was bulk carriers, Cape size, and this is my third sail. So this one is gas tanker. So I would like to give you some comparisons between bulk carrier and gas carrier. Okay, so I have chosen few topics to talk about. So they will be displayed on your screen. Okay, let me read out for you also. First is daily work, then second is voyages, which means the duration of voyage, short or long. Okay, then shore leave, fourth is port watches, then fifth is salary difference, sixth topic is other allowances, seven is parties on board. Okay, then eighth is contract period, means the duration of the contract period, then internet facility, how much internet you're getting on board, drills, okay, how frequently drills are getting conducted on board, then multinationality crew. Okay, few this is about why I chose this topic, because few peoples are okay with multinational crew, but few are not. Okay, so that's why. And risk or danger involved, which one is more dangerous or riskier for your job or health, this bulk carrier and gas carrier. Okay, so these are the 12 topics I have chosen to talk about. So let's start the video. So let me tell you a little bit about my vessel that I'm sailing on. It's a gas carrier. Okay, so there are types of gas carriers. Mine one is LPG, and one more is there called LNG. As far as I know, there are two types of vessels, LPG and LNG. Okay, so LPG stands for liquefied petroleum gas, and LNG is for liquefied natural gas. LPG carries gas, obviously. My this vessel carries propane and butane, these two types of gases. Okay, so their temperature is around -40 degree, and one is -5 degree. And the gas which carried by this LNG vessel, their temperature goes up to -160 or -140 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, जो है डेली वर्क. तो इसमें हम बल्क कैरियर और गैस टैंकर में डेली वर्क का कंपैरिजन करेंगे, कैसा काम रहता है, किस पे ज़्यादा रहता है, किस पे कम रहता है. तो जो मेरे लास्ट के दो वेसल्स थे बल्क कैरियर केप साइज, वो दोनों, एक था 7 ईयर्स ओल्ड, एक था 12 ईयर्स ओल्ड. तो वो कुछ ज़्यादा ही पुराने थे. तो और ये 2 साल पुराना है गैस टैंकर, 2-2.5 साल, अभी तीसरा थर्ड ईयर इसको रनिंग है. ठीक है, तो अब हम ऐसा वर्क, मैं कंपैरिजन तो नहीं करके बता सकता हूँ, बट काम जो है वो सेम रहता है. ठीक है, अभी वो उतने पुराने वेसल्स थे तो वो ज़्यादा रस्टी था, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी मशीनरी ज़्यादा ख़राब थी, कभी भी कुछ भी ख़राब हो जाता था एट एनी टाइम. तो उसमें आप कह सकते हैं वर्कलोड ज़्यादा था, क्योंकि पुराने वेसल्स भी थे और बल्क कैरियर भी थे. ओके, बट जो गैस टैंकर जिस पे मैं सेल कर रहा हूँ, भी ये ज़्यादा पुराना नहीं है, थर्ड ईयर रनिंग है, तो उतना वर्कलोड इसमें नहीं है, बट वर्क सेम है. अंडरस्टैंड दैट, वर्क सेम है. चिपिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, मेंटेनेंस ऑफ डेक मशीनरीज, इक्विपमेंट, ये सब काम सेम है, सब काम सेम है. बस यही है. अभी बल्क कैरियर में क्या होता है, जो कार्गो होता है वो डेक पे स्पिल होता है पूरा. आप कोल कैरी कर रहे हो या दिस आयरन ओर कैरी कर रहे हो, वीट, सीमेंट, कुछ भी हो, तो पूरा डेक पे, पूरा शिप पे स्पिल होता है. तो उसकी वजह से मशीनरीज ख़राब होती है, ग्रीसिंग ख़राब होती है. ठीक है, तो डेक का जो मेटल है वो ख़राब होता है, उसको वॉश करना पड़ता है. तो ये सारे फैक्टर भी मैटर करते हैं. और गैस क्या होती है, डायरेक्ट मैनिफोल्ड पे कनेक्ट करके चिक्सॉ को, और वो डायरेक्टली टैंक में जाती है, वो कहीं कुछ नहीं होती. ठीक है, वो अलग बात है. स्पिल हो गई तो उसके लिए भी एक डिप ट्रे, एक सेव ऑल ट्रे बनाई हुई रहती है जिसमें वो स्पिल होएगा. ठीक है, तो इस वजह से भी गैस टैंकर की कंडीशन ज़्यादा अच्छी रहती है, तो वर्कलोड थोड़ा इस पर कम रहता है. ओके, और सेकंड टॉपिक इज़ वॉयजेस. ओके, तो जिस वेसल पे मैं हूँ अभी, जिस
गैस टैंकर में मैं हूँ, इसके वॉयज काफ़ी लंबे लंबे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग फ्रॉम दिस जापान टू अमेरिका, so it's a 45 days 1.5 month tour. We have to cross Panama, we have to go through Panama ट्रांजिट है, फिर बीच में एंकर मिल जाता है, तो ऐसे ऐसे करके 1-1.5 महीना हमको एक रास्ते में लग जाता है जाने जाने में, और फिर वापस आने के लिए 1-1.5 महीना, सो 3 महीना ऐसे ही चला गया। तो मतलब इतने लंबे वॉयज हैं मेरे शिप के, यूजुअली ऐसे होते नहीं है, मैंने जितना सुना है टैंकर्स के शॉर्ट होते हैं। तो इसका भी हुआ है 1-2 बार, एक हफ्ते का हुआ है, सो इट डिपेंड्स। बट मेरे शिप का जो रूट है वो लंबा है। एंड टॉक अबाउट बल्क कैरियर में भी दोनों हो जाते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। जो मेरा लास्ट वेसल था उसमें हम उसमें फंस गए थे, मतलब केप साइज है वो, तो वो रिवर्स वगैरह उसमें नहीं जा सकता है, तो उसको लॉन्ग रूट और मतलब ऐसे ही रहता है, उसके लॉन्ग रूट रहते हैं, वो ज़्यादा उसका GRT ज़्यादा होता है, ज़्यादा कार्गो कैरी करता है। तो आई डोंट नो द रीज़न, बट हमको लॉन्ग वॉयज मिलते थे बल्क कैरियर में। बट लास्ट में जब साइन ऑफ के टाइम पे 2-3 महीने लास्ट में हमको एक दिन का वॉयज मिला, एक दिन का। और दिस वेसल वाज दिस रिवॉल्विंग अराउंड इन दिस गल्फ एरिया ओनली। एक दिन में ओमान, एक दिन में सऊदी, एक दिन में बहरीन, एक दिन में ऐसे। तो मतलब 9 हैच का आप सोचो, हम एक दिन में क्लीन करते थे पूरा हैच, पूरे 9 के 9 हैच, तो पूरा 24 आवर्स काम करना पड़ता था। तो इट डिपेंड्स ऑन चार्टर, वो कहाँ से कार्गो आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है, कौन सी कंट्री से, ओके। सो टोटली डिपेंड्स ऑन दैट, यू कैन नॉट से कि लंबा मिलेगा या छोटा मिलेगा, इट्स ऑन योर लक ऑल्सो, ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर लक ऑल्सो। अब थर्ड टॉपिक है शोर लीव के बारे में। ऐसा है कि शोर लीव मुझे बल्क कैरियर में भी मिली है और गैस टैंकर में भी मिली है, ठीक है। अमेरिका जाते हैं वहाँ मिलती है, जापान में अलाउड नहीं है। जापान में कुछ ऐसा है कि शाम को 3 बजे या 5 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, तो जापान में जाने को नहीं मिला। और बाकी यहाँ पे मैं अमेरिका में गया हूँ और थाईलैंड में गए हैं हम, हमारा शिप थाईलैंड भी गया गैस टैंकर, तो वहाँ पे भी हमको शोर लीव मिली है, ठीक है। और बल्क कैरियर में भी हमको मिली है शोर लीव, नॉर्वे में मिली है, बहरीन में मिली है, फिर और कहाँ मिली है, ऑस्ट्रेलिया में मिली है, एंड जर्मनी में मिली है, ठीक है। बट वो मिली है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको शोर लीव मिलेगी कि नहीं, ठीक है। एक तो वो कंट्री, जिस कंट्री में आप जा रहे हो वो आपको अलाउ करती है या नहीं, ठीक है। दूसरा, उस कंट्री में उतरने के लिए आपके पास उसका वीज़ा है कि नहीं। एज़ फॉर एग्जांपल अमेरिका के लिए, तो अमेरिकन वीज़ा, US का वीज़ा है कुछ लोगों पे, वो जा सकते हैं, जिन पे नहीं है वो नहीं जा सकते हैं, भले ही शोर लीव अवेलेबल है या नहीं है। यू मस्ट बी हैविंग US वीज़ा, ठीक है। सब कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। थाईलैंड हम बिना वीज़ा के गए थे, और भी जो कंट्रीज़ में हम गए विदाउट वीज़ा गए हैं। सो बट US के लिए चाहिए, उसके रूल्स अलग हैं। एंड दिस सेकेंड थिंग, आपकी कंपनी आपको अलाउ करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे हो गया था, कंपनी से अलाउड नहीं कर रही थी, कुछ कंट्रीज़ भी अलाउ नहीं कर रही थी किसी को भी उतरने के लिए अपनी कंट्री में, यू नो। सो वो भी एक फैक्टर है। और एक और चीज़ है कि जैसे मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ लास्ट शिप का, केप साइज़ का। जर्मनी में हम गए थे, तो वहाँ पे लीव थी, हमको शोर लीव ग्रांट थी। बट क्या हुआ कि हमारा शिप डिटेन हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि वहाँ पे PSC आई थी, तो उन्होंने चेक करा शिप को, तो डिटेन हो गया। सो मैनी नंबर ऑफ डेफिशिएंसीज, 16 और 17 डेफिशिएंसीज। सो कैप्टन ने सबकी शोर लीव कैंसिल कर दी। कैप्टन डिड नॉट अलाउ एनीवन टू गो आउटसाइड। सो हमने क्या करा, फिर हमको वो डेफिशिएंसीज रिजॉल्व करने में लगा दिया, सो दैट वी कैन डिसएम्बार्क फ्रॉम दैट कंट्री, यू नो। सो इसलिए, तो इस वजह से मतलब काफ़ी फैक्टर इन्वॉल्व हैं। बट कंक्लूजन ये है कि गैस टैंकर में भी आपको शोर लीव मिलती है और बल्क कैरियर में भी शोर लीव मिलती है। अब फ्रीक्वेंसी का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं और जो मैंने फैक्टर्स डिस्कस करे हैं, ओके। पोर्ट की हम बात करें, जब शिप पोर्ट पे लगता है तो बल्क कैरियर में बहुत काम रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है बल्क कैरियर में कंपेरेटिवली टू गैस टैंकर। गैस टैंकर में अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो कुछ काम नहीं रहता उसके मुकाबले, ठीक है। जस्ट कंपेयरिंग, काम रहता है बट उसके मुकाबले कंपेरेटिवली। तो बल्क कैरियर में हमको पोर्ट में जो है, मतलब जैसे जो होल्ड खाली होता जाता है हमको वो क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। साइड बाय साइड कभी शॉर्ट वॉयज मिल गया तो हमको
अपनी वॉच में ही जो है होल्ड क्लीन करना चालू कर देना पड़ता है, और फिर डेक भी क्लीन करना पड़ता है। और अगर जो है आपका पायलट जो है चॉपर से आ रहा है तो उसके लिए भी फिर आपको पूरा हैच कवर क्लीन करना है, आजू बाजू के कार्गो होल्ड क्लीन करने हैं, तो बहुत काम रहता है। गैस टैंकर पे क्या है, गैस टैंकर पे आप वॉच पे रहेंगे, यू जस्ट हैव टू स्टे ऑन गैंगवे, 1% शुड बी ऑन गैंगवे ऑल द टाइम। और बाकी यही हाई टाइड लो टाइड के अकॉर्डिंगली आपको रोप्स एडजस्ट करनी है। और जब लोडिंग चालू होगी तो आपको वॉल्स स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में रहता है काम, जब मैनिफोल्ड ये चिक्सो कनेक्ट होता है मैनिफोल्ड से, तो उस टाइम आपको कुछ वॉल्स ओपन करनी है, ऑपरेट करनी है, और टेम्परेचर रिपोर्ट करना है वॉकी टॉकी पे ही, और प्रेशर रिपोर्ट करना है। फिर कुछ वॉल्स होती हैं जो अलाइनमेंट के लिए ओपन करनी पड़ती है, ठीक है। फिर मतलब ये थोड़ा थोड़ा काम रहता है। बाकी जब सब कुछ फ्लो में चलना चालू हो जाता है, कैरी ये अपना कार्गो टैंक्स में जाना चालू हो जाता है, बस उसके बाद आपको मॉनिटर करना है वॉच पे रह के कि कोई लीक है या कुछ है, कुछ भी अब नॉर्मल हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना है। और कुछ पैरामीटर्स होते हैं हर एक टैंक पे, मेरे शिप में 4 टैंक है तो उनमें पैरामीटर्स LCD लगे हुए हैं, पैरामीटर्स है उसमें, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, लाइक दैट, तो वो आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं। वो आपको खुद ही ऑफिसर ऑन वॉच पूछेगा, तो यू हैव टू रिपोर्ट दैट। ओके, डेक राउंड लेना पड़ता है। सो ये नॉर्मल काम रहता है इसमें गैस टैंकर में। बट बल्क कैरियर में बहुत ज़्यादा काम रहता है पोर्ट में, नो डाउट, टू मच वर्क। अब बात करते हैं सैलरी डिफरेंस की। तो बल्क कैरियर में और दिस गैस टैंकर में सैलरी डिफरेंस क्या रहता है। अभी देखिए, सैलरी डिफरेंस जो ऑफिसर डिपार्टमेंट के लिए, ऑफिसर के लिए मैं बात कर लेता हूँ पहले। जो ऑफिसर डिपार्टमेंट की है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ रिस्की कार्गो कंपेरेटिवली टू बल्क कैरियर। ओके, सो इनको रिस्क का एक्स्ट्रा मनी मिलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब इनकी सैलरी ज़्यादा होती है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे लास्ट क्रू सैलरी ऑन बोर्ड ऐसे करके मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैं आई बटन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या सैलरी थी बल्क कैरियर में। ओके, सो वैसा कुछ डिफरेंस है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू द सैलरी ऑफ मास्टर, माई लास्ट, उसमें सैलरी थी मास्टर की 12,000, ओके, बल्क कैरियर में, और यहाँ गैस टैंकर पे है 16,000 अराउंड। तो दिस मच वास्ट डिफरेंस, $4,000 का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। बट वो एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक्सपीरियंस, आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, $100-200 ही बढ़ाते हैं लोग, $400 बढ़ा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं बढ़ाते। सो ऑफिसर की सैलरी में डिफरेंस है, ठीक है। और आप उस रैंक में कितनी बार, जितनी बार भी आप जाओगे, जैसे मेरी सेकंड ऑफिसर में फर्स्ट सेल है, तो मेरी सैलरी होगी अराउंड 3,800, सेकंड सेल में हो जाएगी 4,200, थर्ड सेल में हो जाएगी 4,500 या 4,800, क्योंकि आपको कुछ सी टाइम कंप्लीट करना होता है प्रमोशन के लिए भी, तो आपको 2-3-4 सेल मारनी पड़ेगी, हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑफिसर की सैलरी में तो डिफरेंस रहता है, ठीक है। क्रू की सैलरी, अब मैं यही सोच के गैस टैंकर में स्विच किया था कि क्रू की सैलरी भी गैस टैंकर में ज़्यादा होगी, जैसा मैंने सुना था कि गैस टैंकर में सैलरी अच्छी होती है, बट सिनर्जी नहीं देती है सैलरी रेटिंग्स को ढंग से, ठीक है। गैस टैंकर में सिनर्जी में जो रेटिंग्स है उनकी सैलरी बहुत ही कम है, और कम मीन्स कंपेरेटिवली टू ऑफिसर्स, जैसा उनको रिस्क के हिसाब से सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, अपने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मेरी तो बल्क कैरियर से भी कम हो गई सैलरी, जो बल्क कैरियर में मेरी सैलरी थी उससे $5-10 कम ही मेरे को दिया है इस गैस टैंकर में। तो सिनर्जी में रेटिंग्स के लिए गैस टैंकर में सैलरी बहुत ही कम है, ओके। और यहाँ पे बाकी की मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा दिस अदर अलाउंसेस में, ठीक है। तो सैलरी बहुत कम है, और कितनी कम है मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि गैस टैंकर पे किसकी कितनी सैलरी है, वो भी मैं बताऊंगा, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, मेरे लास्ट वीडियो से। सो दैट इज़ द कंक्लूजन दैट ऑफिसर्स की सैलरी अच्छी है यहाँ पे गैस टैंकर में, बट कंपेयर टू बल्क कैरियर, नॉट अदर कंपनीज बट कंपेयर टू बल्क कैरियर ऑफ सिनर्जी, ओके। So same for ratings also compared to bulk carriers of Synergy, not other companies. Okay, so ratings की यहाँ पे सैलरी कम है। Now let's talk about other allowances. Other allowances क्या होते हैं? Other allowances ये होते हैं जैसे बल्क कैरियर में हमको होल्ड क्लीनिंग के पैसे मिलते थे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी।
तो जो आपको सैलरी मिलती है उससे एक्स्ट्रा। सो उसमें 9 हैचेस थे, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि होल क्लीनिंग के लिए हमको कितना मिलता है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। बट वो ऑप्शंस गैस टैंकर में नहीं है, ठीक है। बल्क कैरियर में ओवर टाइम भी ऑन था और अदर ये भी मिलते थे, आपका होल्ड क्लीनिंग भी मिलती थी, ओवर टाइम भी मिलता था। वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आपकी बन जाती थी, मोर देन 1। बट यहाँ पे गैस टैंकर में क्या है, कुछ भी नहीं है। देर इज़ नो क्लीनिंग ऑफ टैंक, नथिंग, ओके। नो ओवर टाइम इज़ बंद करा हुआ है यहाँ पे। यहाँ का जो सुपर है, जो मेंटेन कर रहा है इस वेसल को, फ्लीट मैनेजर जो है, वो ओवर टाइम एकदम ही शून्य करा हुआ है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं, कुछ नहीं। जितनी सैलरी आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आएंगे बस उतना ही मिलेगा, उससे ना एक पैसा ऊपर ना एक पैसा नीचे, ओके। सो आपको रेस्ट भी उसके अकॉर्डिंगली मिल रहा है कि 9 आवर्स जॉब है पर डे, फिर सैटरडे हाफ डे, संडे फुल डे, ऐसे करके। तो वो बोलते हैं कि हम आपसे एक्स्ट्रा काम नहीं करवा रहे तो एक्स्ट्रा पे भी नहीं करेंगे। सो फिर हम कुछ बोलते भी नहीं हैं, ओके। नहीं तो वो घूम फिर के हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। सो दैट्स वाई वी डोंट से एनीथिंग। बट ट्रूथ यही है कि देर आर नो अदर अलाउंसेस ऑन गैस टैंकर इन सिनर्जी मेरीन, नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट अदर कंपनीज, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट सिनर्जी मेरीन, ठीक है। तो यहाँ पे गैस टैंकर में कुछ भी नहीं है, जितना साइन करके आओगे उतना ही मिलेगा मंथ एंड पे, ओके। जब पार्टीज़ का ऐसा है, पार्टीज़ जो शिप पे होती हैं वो डिपेंड करती है कैप्टन पे, ठीक है। वो कैसे मतलब मैनेज करना चाहता है। तो बल्क कैरियर पे भी होती थी पार्टी, बट मंथ में एक बार ऐसे या 2 बार, मतलब, और हर एक ओकेजन में होती थी, ठीक है। जैसे होली है, दिवाली है, क्रिसमस है और एनी अदर फेस्टिवल, सो ऐसे होती थी। बट वो टोटली कैप्टन पे भी डिपेंड करता है, कैप्टन पे ही डिपेंड करता है वो कैसे वो रखना चाहते हैं पार्टी की नहीं। यहाँ गैस टैंकर पे गया था, जो हमारे लास्ट कैप्टन थे, वो मतलब बहुत सही थे। वो दे ही यूज्ड टू थिंक अबाउट दिस क्रू वेलफेयर, बहुत सोचते थे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में क्रू के। सो ही यूज्ड टू कंडक्ट दिस पार्टी एवरी वीक, हर एक हफ्ते हमारे यहाँ पार्टी होती थी शिप पे, हर एक सैटरडे को, ठीक है। लास्ट 4-5 महीने से ऐसे ही हो रहा था। बट जब से नया कैप्टन आया उसने पार्टी बिल्कुल ही बंद कर दिया। आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर विद हिम, बट वो जब से आया उसने सबका जीना हराम कर दिया और ये पार्टी वार्टी सब बंद कर दिया है। और अभी मैं फिटनेस में हूँ ज़्यादा, तो हमको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पार्टी ज़्यादा इंजॉय नहीं करता हूँ। बट जो जीते हैं, मतलब जिनको पसंद है पार्टी करना, जो अपना फ्रस्ट्रेशंस और जो भी मतलब सारे कलीग से मिलना, बात करना बैठ के, वो सब अब मिस कर रहे हैं सब लोग। सो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। बट व्हाट टू डू, ही इज़ द ओवरऑल कमांड, वी हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, सो दैट्स इट। तो पार्टी का टोटली कैप्टन पर डिपेंड होता है, ठीक है। पार्टी में दारू फ्री होती है, दारू मीन्स बियर, कोल्ड ड्रिंक, जो भी होता है, बॉन्ड से जो इशू होता है वो कटता है, किसी के अकाउंट पे कटता है, मतलब कोई सीनियर अपने अकाउंट से पे कर देता है, नहीं तो कैप्टन सर जो है मैनेज कर देते हैं, वो किसी भी ऑफिसर के अकाउंट से वो करवा के उनसे बात करके, और क्रू को फिर वो फ्री में पड़ जाती है। लेकिन कुछ कैप्टन्स होते हैं जो आपको एक एक बियर के लिए चार्ज करेंगे, ठीक है, एक एक कैन के लिए चार्ज करेंगे पार्टी में भी, तो ऐसा भी होता है। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन द मास्टर। मास्टर अच्छे हैं तो सब सही है, नहीं है तो फिर पूरे शिप का एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है, पूरा इंजन रूम से लेके डेक, पूरा ब्रिज तक सब बेकार हो जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक, 8th टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। सो सिनर्जी में मेरे ख्याल से अभी तक मैंने सुना नहीं किसी से कि 9 मंथ से नीचे का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो 9+ ही होता है, या तो वो आपको 8 महीने में 8th मंथ में उतार देंगे, या वो 10 महीने तक जा सकता है, ठीक है। तो जो बल्क कैरियर थे उसमें तो 9+ ही है, ठीक है। बट मैंने ये सुना था कि गैस टैंकर में शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट सिनर्जी इसमें भी पीछे है। सिनर्जी में, गैस टैंकर में भी 9+ ही है। देर इज़ नो डिफरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, दोनों में 9 महीने का ही है, 9+, देर इज़ नो डिफरेंस। सो अदर कंपनीज़ में है, जो इससे भी और अच्छी कंपनी है, इससे भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें है 6+ है,
या 5 प्लस माइनस, आई डोंट नो, 7 प्लस माइनस भी है। तो बट सिनर्जी में नहीं है। सिनर्जी में अच्छी चीज़ें कम है, यू अंडरस्टैंड दैट। सिनर्जी में अच्छी चीज़ें कम है। बस मेरे को सिनर्जी का एक ही चीज़ अच्छा लगता है कि ये जो फ्रेशर्स होते हैं इनको अपॉर्चुनिटी देती है, ट्रेनीज़ को, जिनको कोई नहीं लेता उनको सिनर्जी ले लेती है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के। वो एक मतलब प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है। बस एक सिर्फ यही चीज़ है सिनर्जी की अच्छी, इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही हो गया। हमारे शिप पे फ्लीट मैनेजर आए थे, वी टॉक टू हिम अबाउट दिस और कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने के लिए। तो उन्होंने बोला ओके आई विल लुक इनटू द मैटर। सब ने बोला कि सर एटलीस्ट 7 प्लस माइनस होना चाहिए। तो बट उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ क्या है। तो अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ, उन्हें बोल के गए हुए 2 महीना हो गया। सो देर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज साइड, आवर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल 9 प्लस माइनस। सो लेट्स सी नाउ द इंटरनेट। इंटरनेट का ऐसा है कि इंटरनेट टाइप ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इंटरनेट किसी में भी ज़्यादा किसी में भी कम कैसे भी मिल सकता है। तो जो मेरे लास्ट के दोनों शिप थे उन दोनों पे मेरे को 2-2 GB मिलता था पर मंथ, पूरे महीने का सिर्फ 2 GB, ठीक है। तो यू हैव टू स्लोली यूज़ इट एंड मेक इट अप टू द एंड, तो एंड ऑफ मंथ। तो ऐसे करके बाकी जो ये शिप है गैस टैंकर है, गैस टैंकर पे यूजुअली मैंने सुना था कि नेट ज़्यादा मिलता है, बट ये भी एक मिथ था, वो भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आया बल्क कैरियर से भी कम मिल रहा था नेट, यहाँ पे 1.5 GB मिल रहा था, 1.5 GB पर मंथ। तो इट मीन्स 50 MB पर डे, 50 MB पर डे यू हैव टू यूटिलाइज। अगर आप 50 MB यूज़ करेंगे पर डे का तो ही आप मंथ के एंड तक कर पाओगे, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाती है। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, अगर पोर्ट ना आए या कुछ ऐसा ना आए जहाँ पे हम सिम नहीं खरीद पाते तो नेट ख़त्म हो ही जाता है। 1.5 GB बताओ, इंडिया में महीने का हफ्ते का मिलता, सॉरी पर डे का मिलता है 1.5-2 GB, यहाँ एक महीने का है। सो फिर उसके बाद कंपनी में मेल किया किसी एम्प्लॉय ने, मतलब हमने रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा इंटरनेट बढ़ना चाहिए, 1.5 GB बहुत ज़्यादा ही कम है। तो हम में से किसी एक ने थोड़ा इनिशिएट लिया, और पेटी ऑफिसर्स में से उन्होंने इनिशिएट लिया, उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई। फिर उसके बाद हमें अभी 3 GB पर मंथ मिलता है। सो दे जस्ट डबल द अमाउंट ऑफ डेटा। सो नाउ यू कैन स्पेंड 100 MB पर डे, ओके। तो आप 30 दिन तक खींच सकते हैं फिर। तो अभी 3 GB है मेरे शिप पे, ठीक है। ठीक है, पहले के मुकाबले ठीक है, कैन नॉट से एनीथिंग, सो इट्स गुड। सो दैट इज़ द इंटरनेट ऑन शिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रिल्स। सो गैस टैंकर एक ऐसा वेसल है जिसपे सेफ्टी बहुत ज़्यादा, वैसे सारे शिप्स पे सेफ्टी मैटर करती है, लेकिन गैस टैंकर ऐसे है कि हल्की सी चूक और पूरा शिप गायब, पूरा ब्लास्ट धुआं हो जाएगा। सो गैस टैंकर पे सेफ्टीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती हैं, ठीक है, और आपको फैमिलराइज करवाया जाता है उन सेफ्टीज़ से। तो ड्रिल्स इसलिए कंडक्ट होती है यहाँ पे फ्रिक्वेंटली, सो दैट फॉर एनी इमरजेंसी यू शुड बी रेडी, ओके। आपको रेडी रहना पड़ता है। बल्क कैरियर में एक्चुअली क्या होता है, जो थर्ड ऑफिसर रहता है उसके पास एक मैट्रिक्स रहती है कंपनी की, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ही हैज़ टू कंडक्ट drills, he has to speak to his seniors, then they arrange any day for their drills, okay। तो बल्क कैरियर पे जितना मुझे याद है बहुत ही मतलब ऊपर से ड्रिल हो जाती थी, समझ रहे हो, वर्बली ऐसे बता देंगे, हाँ ये ऑपरेट ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे करना वैसे करना, करके नहीं दिखाएंगे, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके, और बस आपकी ड्रिल हो गई, रिपोर्ट कर दिया ब्रिज में, हाँ ड्रिल फिनिश्ड। और वो भी महीने में एक बार होती थी मेरे ख्याल से, ठीक है, महीने में एक बार या ऐसे करके। तो मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे बल्क कैरियर में ड्रिल्स को। बट गैस टैंकर में ड्रिल्स होती है एक्चुअल में, जो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए वैसे ही होती है। वो हफ्ते में 4 बार हो चाहे महीने में 4 बार हो, वो होके रहेगी जब उसकी डेट आएगी, भले वो पोर्ट से एक दिन पहले पहुंचने के हो या पोर्ट से निकलने के एक दिन बाद पे सेट हो, वो ड्रिल होनी ही होनी है, ठीक है। और पूरा प्रैक्टिकल होता है, अच्छे से पूरा ऑपरेट करके दिखाते हैं डेविड को, लॉन्चिंग का
और लाइफ बोट का सब कुछ, मतलब जो भी होता है सब प्रैक्टिकली होता है, वर्बली डिस्कस नहीं होता है, एक्चुअल सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। सो इस मामले में गैस टैंकर बहुत अच्छा है। तो ड्रिल्स क्या रहती है, फ्रीक्वेंट ड्रिल्स आपको फैमिलराइज करके रखती है कि आपको इमरजेंसी में कैसे एक्ट करना है और कैसे वो इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ होंगे, आप कैसे करेंगे। वैसे मास्टर लिस्ट में सबकी ड्यूटी असाइन रहती है, सबको अपनी ड्यूटीज़ याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ड्रिल के टाइम पे ही आपकी ड्यूटीज़ आपको परफॉर्म करनी है। आप कोई आपको बताएगा नहीं, यू शुड नो योर ड्यूटीज़ इन योर हेड। ओके, कि फायर ड्रिल है तो मेरी ये ड्यूटी है, और दिस मैन ओवरबोर्ड ड्रिल है तो मेरी ये ड्यूटी है, यू अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ लाइक दैट। तो ड्रिल काफ़ी होती है यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं मल्टीनेशनल क्रू। मल्टीनेशनल क्रू वाला टॉपिक मैंने क्यों रखा है इसमें, क्योंकि अभी सिनर्जी क्या है, अडेप्ट कर रही है इस चीज़ को भी कि मल्टीनेशनल क्रू होना चाहिए बहुत पहले से। बट मैं तो अभी आया हूँ सिनर्जी में, तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब बल्क कैरियर में भी मेरे साथ बांग्लादेशी थे, श्रीलंकन थे, और दिस यूक्रेनियन भी थे। सो और यहाँ इस शिप में भी मेरे साथ कौन थे, म्यांमार के हैं, और अभी फ़िलहाल म्यांमार के हैं, और आई थिंक आई डोंट नो वेयर इज़ दैट गाय फ्रॉम। सो ऐसे है, मतलब मल्टीनेशनल क्रू है। तो इसमें कोई टाइप ऑफ वेसल डिपेंड नहीं है, किसी भी वेसल पे आपको मल्टीनेशनल क्रू मिल जाएगा सिनर्जी के, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज, बट अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन में हो जाती है, ठीक है। मल्टीनेशनल क्रू जैसे फिलीपींस, चाइना, और क्रू डिपार्टमेंट में जो आते हैं मोस्टली वो फिलीपीन, चाइनीज़, म्यांमार। ओके, और मैंने फ़िलहाल यही देखे हैं अभी तक। तो उनको इंग्लिश आती नहीं है ढंग से, और हमारी लैंग्वेज तो वो क्या ही बोलेंगे। तो उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि जो आप बोलना चाह रहे हो समझ नहीं पाते, जो वो बोलना चाह रहे हैं आप समझ नहीं पाते। तो ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज हो जाता है। बाकी सिनर्जी में चीफ कुक और जो भी रहते हैं वो सब इंडियन ही रहते हैं, तो फूड की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। फूड आप इंडियन ही बनेगा। उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम नहीं हो पाती, मतलब जब हम, जैसे आप समझिए मेजॉरिटी में है इंडियंस, तो वो समहाउ अडेप्ट कर लेते हैं उस फूड को, खाना चालू कर देते हैं इंडियन फूड को, तो उनको अच्छा लगने लग जाता है, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं समहाउ। अब घर चलाने के लिए हर किसको नहीं एडजस्ट करना पड़ता, कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह है। सो ऐसे करके मतलब मल्टीनेशनल क्रू से खाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब अच्छे ही हैं, आपस में सब मिलजुल के रहते हैं, देयर इज़ नो बिग इशू इन दैट। तो वो बट कोई इंडियन अगर ऐसे किसी कंपनी में चला गया जिसमें कुछ ज़्यादा ही मल्टीनेशनल क्रू है, मतलब इंडियंस बहुत ही कम है और अलग नेशनलिटी के लोग अलग ज़्यादा हैं, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है फूड में, बिकॉज हम चटक मटक खाने के, मतलब मसाले वाला ये सब खाने के शौकीन रहते हैं, बट वो लोग बॉइल्ड फूड और मतलब ऐसे करके ओनली राइस, मैंने सुना है ऐसा, पोटैटो ऐसे करके खाना खाते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और बीफ तो हम खाते नहीं हैं, पोर्क ये सब, तो ये सब चलता है उनके में, बट हम ये सब नहीं खाते, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सो दे विल समहाउ मैनेज, वो मैनेज कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग अबाउट मल्टीनेशनल क्रू। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क और डेंजर इन्वॉल्व इन गैस टैंकर और बल्क एरियर। क्या क्या डेंजर है और क्या क्या रिस्क है। तो द डे आई ज्वाइंड बल्क एरियर, my chief officer told me you have to be sober in your watch and you have to report each or individual ship, or if you have any doubt still report. Okay, so आप जो है हर चीज़ को रिपोर्ट करेंगे, because if something goes wrong bulk carrier will sink into water within 2 minutes or 3 minutes. Okay, so जो बल्क एरियर है केप साइज, वो जो है 1-2 मिनट के अंदर ही पूरा पानी में डूब जाएगा, गायब हो जाएगा एकदम। अगर कोई मिस्टेक हो गई, कोई एग्राउंड हो गया शिप, या कोलिजन हो गया, कुछ भी हो गया, एनी अदर बैड थिंग हैपन टू शिप, सो 2-2.5 मिनट 3 मिनट लगते हैं बल्क एरियर को पूरा डूबने में, और हमारा तो वैसे भी ज़्यादा जीआरटी का था, और दैट्स वाई। अब गैस टैंकर की बात यह है कि अब आई डोंट नो कि बल्क एरियर डूबने पे आप बच सकते हैं कि नहीं। देयर इज़ अ लाइफ बोट कॉल्ड दिस सेल्फ लॉन्चिंग लाइफ बोट, फ्री फॉर लाइफ बोट बोलते हैं उसे। उसमें आप बैठो और बस एक पिन खींचो और डायरेक्टली यू विल गो इनटू द वाटर। तो वो भी हमको बचा पाएगी कि नहीं 2 मिनट में, भगवान जाने।
बट कहते हैं बचा लेती है। सो ऐसी एक लाइफ बोट इसमें भी है, फ्री फॉल। अब गैस टैंकर क्या डूबेगा, बट डूबने से पहले वो फटेगा, बिकॉज इट्स गैस टैंकर इज कैरिंग दिस कंबस्टिबल गैसेस। ओके, तो दिस प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दे आर कंबस्टिबल गैसेस, ये जल जाएंगी और आपको भी जला देंगी। तो दैट्स वाई गैस टैंकर पे काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, सेफ्टी रहती है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहती है कंपैरेटिवली टू बल्क कैरियर। उसमें उसके अकॉर्डिंग है सेफ्टीज़, इसमें इसके अकॉर्डिंग है। ये ज़्यादा रिस्क वाला कार्गो कैरी कर रहा है तो इसमें उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी है, वो कम रिस्क वाला कार्गो है, ओके, सो उसमें उसके अकॉर्डिंग सेफ्टीज इंस्टॉल्ड है। सो अब उसमें जो कार्गो कैरी होता है उससे हमें या हमारी हेल्थ को, हमारी जॉब को क्या मतलब नुकसान है। अभी देखिए जो मैंने करे हैं लास्ट के 2 कैप्साइज बल्क कैरियर, उसमें ऐसा है कि जो कार्गो हम कैरी करते हैं कोल और दिस आयरन ओर, मैंने ये दोनों कैरी करे हैं अभी तक। कैप्साइज में मोस्टली यही होते हैं। तो उससे क्या आपको हेल्थ का प्रॉब्लम ये होगा कि मतलब आप इनहेल करते हो, वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो इनहेल करते हो, गोज इनटू योर लंग्स, इनटू योर बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स, बट समहाउ फ्लश आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा सीन रहता है। और जो हम होल्ड क्लीन करते हैं वो भी ओनली जस्ट विद वाटर, ठीक है, सिर्फ पानी से या फिर समटाइम्स झाड़ू से ऐसे करते हैं। लेकिन जो बल्क कैरियर है, जो ईटिंग कार्गो मतलब एडिबल कार्गो जो कैरी करते हैं, लाइक दिस शुगर और दिस वीट, ठीक है, तो जो ये कैरी करते हैं उसके जो होल्ड होते हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, लाइक एकदम मिरर, ओके, वो एकदम साफ़ होने चाहिए, बिकॉज उसमें खाने की चीज़ लोड हो रही है, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए यूजुअली अगर दे आर कैरिंग सेम कार्गो, अगर वीट इस पोर्ट से लोड करा है, वहाँ डिस्चार्ज वीट करा है, अगेन इफ़ यू हैव टू लोड वीट, तो इतनी मतलब डीप क्लीनिंग नहीं होएगी मेरे ख्याल से होल्ड की। बट अगर कार्गो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो डीप क्लीनिंग होती है, बहुत अच्छे से होती है। पहले सॉल्ट वाटर से करेंगे, आई थिंक, आई हैवंट डन दिस टाइप ऑफ वेसल, बस जस्ट आई एम गेसिंग। पहले सॉल्ट वाटर से करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेश वाटर से करेंगे, फिर स्टिल रिमेनिंग तो ये केमिकल मारते हैं बल्कहेड्स पे कार्गो होल्ड की, कुछ भी स्टेन्स वगैरह या कुछ भी है, और फिर मतलब ऐसे करके वो केमिकल जो यूज़ होता है, तो वो केमिकल भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। वैसे तो प्रॉपर पीपी पहन के वो गन से जो है केमिकल मारते हैं, बट स्टिल सम पार्ट ऑफ केमिकल वेपर्स यू वर इनहेलिंग देयर, ओके, तो कुछ जाता है बॉडी में। अब वो क्या हार्म करता है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पता चलेगा, बाद में पता चलता है, अभी मेडिकल्स में कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। तो उसमें ये हार्म है आई थिंक मैक्सिमम, बाकी इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कार्गो से कुछ ज़्यादा हार्म होगा। गैस टैंकर में क्या हार्म होता है, अभी देखो कार्गो कंबस्टिबल है, अगर गलती से आग लग गई, स्पार्क मिल गया कार्गो को, तो शिप गायब। ये कार्गो की वजह से बता रहा हूँ मैं, ये हार्म है, कार्गो गायब, आप भी गायब, ठीक है। दूसरा कार्गो जो है वो गैस है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर जो है माइनस में रहता है। तो अगर आपकी स्किन उसके टच में आ गई, हाथ पे लग गई या कहीं पे भी, सो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई, तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। मतलब जो ज़्यादा, जैसे आग में हाथ जल जाता है वैसे ही ठंडे से भी हाथ जल जाता है, ठीक है। जैसा हाथ में हॉट बर्न होता है वैसे ही कोल्ड बर्न भी होता है, ठीक है। तो वो इतना माइनस में रहता है, -40 डिग्री में रहता है, 45 डिग्री में जो हमारी शिप में कार्गो। अगर हाथ पे गिर गया तो आपका हाथ, स्किन जल जाएगी, पूरी स्किन जल जाएगी वो, ठीक है। तो ये भी उसका एक रिस्क है गैस टैंकर में। और ये कब होगा, जब आप आई थिंक दिस इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, इंजेक्शन का मैनिफोल्ड पे कनेक्शन कर रहे होंगे, रेड्यूसर चेंज कर रहे होंगे या रिमूव कर रहे होंगे, मतलब कभी भी हो सकता है ये, ठीक है। और तीसरा क्या है, इन्हेलेशन, ठीक है। जो जब आप मैनिफोल्ड के पास रहते हैं गैस टैंकर में, जब मैनिफोल्ड के पास रहते हैं, इंजेक्शन जब कनेक्ट करते हैं या रेड्यूसर जब भी कनेक्ट करते हैं, तो हम ब्लैंक निकालते हैं, उसके बाद ये सब कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होती है, गैसेस रहती हैं पहले से, तो वो जो गैसेस आप इनहेल कर रहे हैं वो भी आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगी, ठीक है। अभी नहीं, बाद में आपके जो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा कार्गो कैरी कर रहे हैं और कितने टाइम तक आप एक्सपोज रहे हैं उस गैस पे। सो लेट्स से द गैस वी आर कैरिंग, प्रोपेन ब्यूटेन, दे आर नॉट दैट हार्मफुल। अगर इनको इनहेल कर लिया तो कुछ
खास प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ज़्यादा टाइम तक कर लोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट स्टिल थोड़े बहुत से कुछ खास होता नहीं है। ऐसी कुछ अदर गैसेज हैं, लाइक एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया भी कैरी होती है, जिस टाइप का वेसल है मेरा उस पर, तो अमोनिया ज़्यादा हार्मफुल गैस है, ठीक है। तो उसको अगर आप इनहेल कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक एक्सपोज रह लेंगे, तो वो इफ़ेक्ट करती है बॉडी पे, बाहर भी इफ़ेक्ट करती है। यू विल गेट इचिंग एंड ऑल, ठीक है। कुछ भी ड्रॉप गिर गई, उसकी ड्रॉप तो नहीं गिर गई, मतलब कुछ वेपर्स या ऐसा कुछ लग गया बॉडी में, तो जो है इचिंग होगी पूरी बॉडी में, फिर इंटरनली भी वो आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगी। अमोनिया वेरी डेंजरस गैस टू कैरी। तो ये 3 चीज़ें गैस टैंकर के कार्गो से आपको इफेक्ट कर सकती है। वन इज़ ब्लास्ट ऑफ शिप, ठीक है, इफ़ कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एनी दिस फायर और स्पार्क, ठीक है। सेकेंड, दिस कोल्ड बर्न और फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। थर्ड, इनहेलेशन विच कैन कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन योर बॉडी। ये 3 चीज़ें। और बल्क कैरियर में मैंने जैसा आपको बताया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रिस्क और डेंजर का, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है स्विच करने से पहले, ठीक है। स्विचिंग बिफोर स्विचिंग टू गैस टैंकर। सो कुछ लोगों का कहना है कि आई एम गुड इन बल्क कैरियर क्योंकि यहाँ पे गैस की स्मेल आती है। फॉर अंटिल नाउ, अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने फील नहीं करा है कैबिन्स में जो है किसी भी गैस की स्मेल आ रही हुई है, ऐसा कुछ भी मैंने ऑब्जर्व नहीं करा है या फील नहीं करा है। सो जिन्होंने करा है उन्होंने करा ही है, वाई दे विल लाई। अगर आपको गैस टैंकर पे सबकी सैलरी के बारे में जानना है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ओके। एंड टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ओके। सो मैं वीडियो बनाऊंगा एंड आई पोस्ट द अपडेट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम both together. So thank you so much guys, thanks for watching and have a nice day.